नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। टुडे आई डिस्कस अबाउट जावा वेरिएबल्स। टुडे आवर जर्नी व्हाट इज जावा वेरिएबल्स। सो what is today minutes over here with respect to variable? First is what is variable, second thing is types of variable and example of variable. So what is variable? A variable is a name of memory location. So you can say variable is an entity which store any value a particular location, and variable is a name of reserved area allocation in memory. Perfect. किसी मेमोरी के अंदर अगर एक फिक्स एरिया होता है जहाँ पे किसी वैल्यू को वेरिएबल ही रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई वैल्यू वहाँ पे फिक्स है तो उसको हमें यूज करना है तो किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा और वो ही उसको रिप्रेजेंट करने वाला है। ओके, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी प्लस एबल, दैट मीन्स इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड। ओके, if I talk about, you can also change any value with the help of variable, but if I talk about in the constant, you cannot change any constant always fixed, but you can change the value of with respect to variable. So if I talk about reserved area, suppose we have a RAM. Okay, so if you write suppose a equal to 10, so 10 is a constant, so this is the reserved area for variable. So I also say second line, please see, variable is name of reserved area location in memory. Okay, so this is the simple diagram. It is representative of the variable. वेरिएबल जैसे ही आप डिफाइन करेंगे उसके एक रिजर्व एरिया हो जाएगा रैम के अंदर, और वहाँ पे जो भी वैल्यू आप स्टोर करेंगे वो उसको इंडिकेट करने वाला है। ऐसा ही आप अब तक साथियों पढ़ते आ रहे हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट इन जावा, सो व्हाट इज, सो देर आर टाइप्स ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. सो टाइप्स ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट वन इज लोकल वेरिएबल, second one is static variable, and instance variable and reference variable. So one by one we see every variable over here. So what is local variable? The scope of local variable is only within method, is only within bracket. So when we declare any function, very oblique method, so the local variable is reserved for particular function. So there is no by default value of local variable. If you suppose if you write integer a, then if you print the value of a, so you cannot declare anything in Java. But in case of C variable in C++, you can declare also. Okay, so there the by default value is garbage, but in the point of view Java, there is no consider by default value for local variable. So you cannot declare only simple variable. If you write integer a, but you have to need a equal to 10, a equal to 0, etc. So note, it will be must initialized. If you cannot initialize, then it's arise the compile time error. So you can see any example with the help of next time. So if I talk about local variable, suppose we write class local variable and you have to need a function, a method always. If you write int equal to 10, this is called local variable for this method. If you access out of method of the value of the value of variable a, you cannot access, because the preference always in this method. So a equal to 10 is always call in this method, so this is called local variable. If you write public static void main also, because you have to need objects. So how create object in Java? Simply we write class name, then space reference variable equal to new local, always class name, this is called constructor. If you call lv is a object of local v class and void show method inbuilt in local v class. So lv dot show,
when you call lv.show then our control go to void show method। अगर आप मेथड को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के माध्यम से, आपको उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से आपको कॉल करना होगा, ऐसे ही आपका कंट्रोल void show फंक्शन पे जाएगा, वहाँ इक्वल टू 10 देन सिस्टम आउट डॉट println, सो द आंसर इज 10 over here, then close this bracket and this always close। So if I take an example, suppose simply you can open, suppose class local v and you write suppose void show, then you write suppose int a then semicolon। So if you write a equal to 10 system dot out dot println the print of the value of age over here, then close this and public static void main and string, always you write 3 dots over here and a this one and open this bracket and you write local v equal to lv is our object, then new again local v and this is the object creation। So close this bracket and close this bracket। So if you save this program, so this one program already saved local v, so you can override of this program, no problem। Okay, so if you run of this program, suppose so you write DOS or always, so if you write if you click on save as and then you write cmd also, then open this where is your path save java c control v and this one, this is compilation, fully successful compilation, and again copy then yes। So the answer is 10 yes over here, perfect, okay। But in case of suppose, yes, firstly open notepad, if case of simply you write a integer a, अगर आप a का मान यहाँ पे नहीं देते हैं, तो अभी मैंने बताया कि लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी होता है, तो इस केस में इसका आंसर आएगा क्या, कंपाइल नहीं करने देगा आपको। ओके, यू राइट DOS cmd over here java c then this then dot java। okay, yes, variable might not have been initialized in case of if you write simple a integer a। okay, so in this case you can declare this one over here, you have to need initialize of this variable। ओके ओके, यस। एक बार मैं आपको सिंपल बता देता हूं, अगर आप लोकल वेरिएबल की बात करें, जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन या मेथड डिफाइन करेंगे, उसके अंदर आपको उस लोकल वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करनी ही पड़ेगी, और जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो उसके दायरे में आएगा। जैसे ही आप void show फंक्शन बनाएंगे, वहाँ उसको मेमोरी मिलेगी और वहाँ से वो कॉल हो जाएगा। सेकेंड वन इज स्टैटिक वेरिएबल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट with respect to Java। static variable is a part of class। okay, when we declare any class, if you write static variable, so this is a member of always class, so it is shareable in whole program। HOLE नहीं आएगा, whole मतलब W आना चाहिए ना यहाँ पे, yes। it is very important thing over here, it's shareable in whole program, perfect। it's called compilation time, when we compile of this program, then it's called, because it is the part of class, it is not part of object, perfect। when we no need instance create of static variable। okay, अगर हम static variable बना देते हैं तो हमें उस variable को object बना के कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, because this is the part of
class. It is not part of object. Remember? Yes, suppose you write in static int equal to 10. So by default value is 0. So now this is, so I prove with the help of example also. So if firstly we write, yes, suppose already I have write suppose int equal to 10, but it is not static type. So static sts. So we have to no need object creation with respect to static. ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ क्लास. सो स्टैटिक मेंबर ऑलवेज पार्ट ऑफ क्लास. वी हैव टू नो नीड क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट. इफ यू राइट ए एंड दिस एंड ऑलवेज you simply after the compilation suppose we write, so static variable, suppose yes open, and firstly cls java c sta static variable dot java. ओके, इंट स्टैटिक लिख दिया है क्योंकि ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको स्टैटिक पहले ही लिखना पड़ेगा. सो यहाँ पे आएगा साथियों स्टैटिक एंड दिस वन. ओके, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट टाइम कंपाइलेशन इट, यस एस इज कैपिटल, सो दिस इज टाइपिंग मिस्टेक ऑल्सो, एंड बी. परफेक्ट. So 10 is answer over here with the help of static variable. One question arise in my mind also. So if you remove static keyword over here, so what will be happen over here? यहाँ पे क्या होगा अगर हम static को remove कर देते हैं यहाँ से? So at a time integer a equal to 10 it is not part of class member. I ask you simple question, is this local variable? Second thing, is this instance variable? Third one, is it static variable? Yes or no? And last one is it reference variable? Which type variable exists over here? Local कहलाएगा, static कहलाएगा, instance कहलाएगा या reference कहलाएगा? ये local तो variable हो नहीं सकता. local की जो दादागिरी है वो केवल function के अंदर रहेगी. ओके, इट इज़ नॉट फंक्शन, इट इज़ अ क्लास ऑफ कोर्स. सो स्टैटिक की पहचान होगी कि आप स्टैटिक लगाओगे, रेफरेंस हो नहीं सकता, तो दिस इज कॉल्ड इंस्टांस वेरिएबल. सो इफ यू कॉल ऑफ दिस वेरिएबल ओवर हियर देन यू कैन नॉट कॉल दिस वन ए. इफ यू कंपाइल, इट इज नॉट कंपाइल एक्चुअली. ओके, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम द स्टैटिक. इसका मतलब ये हुआ, आप मेरी बात को ध्यान से सुने, इसका मतलब ये हुआ कि हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक फंक्शन के अंदर कभी भी कॉल नहीं कर सकते. अगर आपको कॉल करना है तो आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, और ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं. पॉइंट क्लियर है आपके दिमाग में? लोकल हो नहीं सकता, स्टैटिक है नहीं, क्योंकि अगर आपको यहाँ इसको कॉल करना है तो साथियों स्टैटिक बनाना ही पड़ेगा. इसलिए आज आपके समझ में आ रहा होगा कि जेम्स गॉसलिंग उसकी टीम के मेंबर्स ने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ही मेथड का नाम क्यों रखा. क्योंकि अगर आप स्टैटिक नहीं बनाते तो आज इस स्टैटिक वेरिएबल को बनाने के बाद यहाँ आप कॉल नहीं कर पाते. इसलिए स्टैटिक बनाया क्योंकि हमें भविष्य में अगर स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना है, स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करना है, तो विदाउट क्रिएशन ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल ओवर हियर. परफेक्ट. ओके, सो इस तरह से. ओके, नेक्स्ट वन इज लास्ट इज बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0. सो हाउ प्रूव इट? यस ऑफ कोर्स आई प्रूव इट. सपोज यू remove from here 10. So you compile and this run successfully, no problem. Yes, answer is 0. Now next one is instance variable. Instance variable is a part of object. It is called non-static member also, without creation object and without this. And if you want create a static main function, then you have to need object. So instance variable is a part of object. It's called runtime by the
ऑब्जेक्ट। ये हमेशा रन टाइम कॉल होता है, स्टैटिक कंपाइल टाइम ही कॉल हो जाते हैं। वी कैन नॉट कॉल इंस्टांस वेरिएबल विदाउट क्रिएट ऑब्जेक्ट। ओके, इंस्टांस वेरिएबल को आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल नहीं कर सकते। इफ़ यू talk about instance variable example, suppose you write instance v equal to 10 public static void main this. Okay, we have to need instance of the class. So instance v is a class name, iv is a object, and new instance v. So over here you can also say iv is an instance of the instance v class, and system out dot println iv is object then dot a. okay, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा रन टाइम बनते हैं, और इसको कॉल करेंगे तो आपका आंसर 10 यहाँ पे आने वाला है। अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो इसको आप यू कैन नॉट एक्सेस ओवर हेयर, बट दिस वन प्रूव बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आई हैव ऑलवेज टू राइट इंस्टांस वी। ओके, इंस्टांस वी इज अ क्लास नेम, यस, इंटीजर ए इक्वल टू 10, एंड आपने ऑब्जेक्ट बनाया, इंस्टांस वी एक क्लास है जिसका आपने आईवी नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू इंस्टांस वी एंड दिस। ओके, और आईवी ऑब्जेक्ट का नाम है। किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को कॉल करने के लिए डॉट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके सामने है। जैसे ही हम आईवी डॉट ए करेंगे आपका ये 10 कॉल हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। सो जावा सी इंस्टांस वी डॉट Java. Okay, successful compile, but instance v, yes, run of this program always. So if I talk about a simple, if you write a equal to 10, so what is the by default value of instance variable? Okay, can I check it? Yes, of course, yes. So 0, yes. So static and instance variable value by default is 0, but in case of local variable we have to must need initialize of local variable. परफेक्ट। चलिए, इस तरह से साथियों मुझे लगता है कि आपको लोकल वेरिएबल समझ में आया होगा। उसको हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे। इंस्टांस और स्टैटिक की बात करें, इंस्टांस को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्टैटिक को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट आप कॉल कर सकते हैं, इसलिए जावा ने मेन मेथड को स्टैटिक बना दिया हमेशा के लिए। ठीक है, नाउ आई डिस्कस अबाउट लास्ट वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल इज अ रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर आफ्टर क्लास नेम। सो इफ यू राइट अ सिंपल एग्जांपल इंट इक्वल टू 10 दिस, मुझे केवल ये प्रोजेक्ट, वैसे 3 ही होते हैं मेन, चौथा तो एक तरह से बनाया गया है इसमें। सपोज आप लिखते हैं रेफरेंस वेरिएबल इज अ क्लास नेम, ओके, देन आईवी के स्थान पे मैं यहाँ आर वी कर देता हूँ, आर मतलब थोड़ा दिक्कत ना हो आपको, आर फॉर रेफरेंस एंड वी वेरिएबल। ओके, सो यहाँ भी आर वी आ जाएगा। ठीक है, सो जो ये वाली बात आप लिख रहे हैं रेफरेंस आर वी, ऐसे करके आप इसको अलग अलग लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बोला जाता है रेफरेंस वेरिएबल किसको रेफरेंस कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, क्लास को, बस इतना है। बाकी इसमें और इंस्टांस वेरिएबल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इस चीज़ को आप इंस्टांस वेरिएबल बोल देते हैं, लेकिन जब आप क्लास का रेफरेंस बनाएंगे, इट इज़ रेफरेंस नॉट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब आप न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो इसको बोल देते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, सो इस तरह से ये चारों के चारों आपके सामने हो चुके हैं। इसका भी एग्जाम्पल जो आपने पीछे बनाया था वही इसका एग्जाम्पल रहेगा। इस तरह से मैं इन चारों को अभी आपके सामने एक प्रोग्राम बनाऊंगा और चारों को आप एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहीं से उठा लेता हूँ इसका एग्जाम्पल, सपोज लोकल वेरिएबल से। ओके, एक मैंने यहाँ से इंस्टांस बना रहा हूँ आपके सामने, इंट सपोज इसको मैंने बी दे दिया और b इक्वल टू 10 दे दिया। ओके, नेक्स्ट ले लिया मैंने स्टैटिक इंट c ले लिया यहाँ पे इज इक्वल टू 20। परफेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड इंस्टांस वेरिएबल INSTANSC VARIABL, एंड दिस इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। अब आपके समझ में चार आने वाले हैं। यस, स्टैटिक वेरिएबल STATIC VARIABL। okay, and this is local variable also, right?
है ना। तो नाउ ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको रेफरेंस को कॉल करना है। स्टैटिक को बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हैं, बारी बारी से मैं कॉल करके दिखाऊंगा। ऑब्जेक्ट इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम सो नाम के मेथड को भी हम, एक बार मैं चारों पे आपको अलग से दिखा देता हूं। देखिए मैं इसको भी अलग कर रहा हूं यहाँ पे आपके सामने। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल, इसी को बोलते हैं साथियों रेफरेंस वेरिएबल। REFERENCEVARIABL, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे LV करके, दिस वन। ध्यान से देखिए चारों को, मैं एक बार फिर से आपको डिफरेंस बता रहा हूँ साथियों। लोकल वेरिएबल को मेथड के अंदर डिफाइन या डिक्लेयर किया जाएगा, परफेक्ट। दूसरी बात, अगर हमने क्लास के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया, लिख दिया, तो इसका मतलब वो 100% इंस्टांस वेरिएबल है, ये बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल नहीं हो पाएगा। सेकंड थिंग, अगर आपने उससे डेटा टाइप से पहले स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल किया, तो इसको आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। बात क्लियर? रेफरेंस आपके सामने है ही। सो जैसे ही हम सो को कॉल करेंगे तो हमारा एक कॉल हो जाएगा। अब मुझे बारी बारी से सारे कॉल करने हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लोकल, है ना। इसको मैं डबल कोट्स में क्लोज कर रहा हूँ आपके सामने, जिससे मुझे याद रहे कि लोकल है। यहाँ हम जानते हैं कि यहाँ प्लस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ पहला लोकल कॉल होगा। दूसरे बारे में इंस्टांस वेरिएबल हमें कॉल करना है, तो साथियों आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे LV डॉट, लेकिन क्या करना पड़ेगा, डॉट B। यहाँ पे लिख दो इंस्टांस, ओके। लास्ट वन इज स्टैटिक, स्टैटिक को भी यहाँ कॉल कर लेते हैं। तीनों के तीनों मैंने एक ही प्रोग्राम में बना के आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। सो हमें इस केस में ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर लिखूंगा स्टैटिक, STATIC। पूरा का पूरा प्रोग्राम साथियों आपके सामने एक ही बार में कंपाइलन हो जाएगा। देखते हैं इजी मोड में। सो जावा सी लोकल V मैंने इसका नाम रखा, ओके। ओके, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोट्स लिख गया है। बुरा तो साथियों मानेगा जब हम जावा के नियमों का उल्लंघन करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड कंपाइलेशन एरर ऑल्सो, ठीक है। चलिए चलते हैं दुनिया में वापस। एरर भी आना कोई बहुत बड़ा मुश्किल गलत काम नहीं है, ठीक है। सो जावा लोकल V, यस, लोकल इक्वल टू 10, इंस्टांस इक्वल टू 10, स्टैटिक इक्वल टू 20। क्योंकि मैंने इंस्टांस को 10 डिफाइन किया है, इसलिए यहाँ पे चाहो तो इसको साथियों 20 कर दो अलग अलग, और अच्छे समझ में आ जाएगा आपके में। इसको आप 30 कर सकते हैं। हो गया काम? यस, लोकल 10, इंस्टांस 20, स्टैटिक 30। इस तरह से आपके सामने मैं एक बार फिर से आपको एक एट ए ग्लांस मैं आपको बता देता हूं। ये मेरे पास 4 वेरिएबल थे। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा। अगेन, लोकल वेरिएबल ऑलवेज डिफाइन within method, static variable is a part of class, and instance variable also part of object, not part of class, but we define always within class. So if you write static before int, float, char also, so this is called static variable. This is the part of class, and we have to no need creation any object in case of static. If I talk about instance variable, we have to need object creation. After the object, we can call instance variable. Perfect. So इस तरह से लोकल का फिर मैं बता रहा हूँ लास्ट में आपको जाते जाते। लोकल को मेथड के अंदर, स्टैटिक इंस्टांस क्लास के अंदर रहेंगे। अगर वो सिंपल है, क्लास के अंदर है, मेथड के अंदर नहीं है, तो वो इंस्टांस हो गया, स्टैटिक लग गया। स्टैटिक की बड़ी सिंपल पहचान है कि उसके आगे स्टैटिक लगा मिलेगा। इंस्टांस की पहचान ये कि वो फंक्शन के अंदर नहीं होगा। अगर वो मेथड के अंदर चलेगा तो लोकल बन जाएगा, और मेथड से ऊपर बैठा है तो इंस्टांस बन गया। स्टैटिक कीवर्ड
नहीं लगाए तो स्टैटिक लग गया तो स्टैटिक बन गया। रेफरेंस का मतलब सिंपल है, जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका एक ही लाइन में ना दिखा के आपने क्लास का नाम लिखा स्पेस आपने वेरिएबल का नाम लिखा तो उसी को हम रेफरेंस वेरिएबल बोल देते हैं, और पूरे के पूरे की हम बात करें तो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये सारे के सारे मैंने आपको वन बाय वन डिफाइन किए। और साथ ही अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है किसी भी वेरिएबल में तो यू कैन कॉल मी, और जो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। सो इस तरह से आज का हमने चर्चा किया सारे के सारे वेरिएबल्स कितने प्रकार के जावा के अंदर होते हैं, डिफरेंस है वहाँ यहाँ में केवल दो की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, स्टैटिक इंस्टेंस की, लोकल की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई होती नहीं है, क्योंकि हमें वो इनिशियलाइज करना ज़रूरी ही है, करना ही पड़ेगा। अभी हमने इसको चेक करके भी देखा था। सो इस तरह से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। So I recommend it or to all of you, my dear students and dear colleagues, always my dear respected seniors. If you see my if you check my orthology with respect to teaching style also. So I humble to request, please share, please comments, and please bell icon press also. थैंक यू वेरी मच। हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।